All right, G. Is this slide visible to you? Yes, sir. Okay, so we started today's lecture, and that is lecture 10.2, which is an extension of what we had studied yesterday, Jacobian, and we will be dealing with the velocities, and we will be talking about linear and angular velocities of the end effector. So just to recap what we did in the last lecture, uh, we um, we derived an equation which actually which looks something like this. That was chi, Jacobian, and q dot, and these were the velocities. These were the linear and angular velocities. These were the joint variables in terms of theta dot and d dot, and these linear and angular velocities were of v as linear velocity and omega as angular velocity, and this was also in three dimension. This was also in three dimension, and then we came across this Jacobian J, which is actually a matrix which converts the joint variables into the linear and angular velocities. So this is what we did yesterday, and today we will also be reinforcing ourselves to calculate this particular matrix, which is called Jacobian, which can help us converting the joint variables of any robot, any manipulator into its linear and angular velocities. So this is what we did yesterday, and today is our we will be reinforcing ourselves by solving two more examples. So this is what we did yesterday. So this is the chi matrix. This is the chi vector here. This is the chi vector. Then we have Jacobian, and this is the q dot net, ये जो हमने अभी पिछले उसके ऊपर बात की थी. So now what happens that we want to find out the Jacobian of a manipulator with three joints. So we will be talking about again a 3 degree of freedom robot. और ये जो 3 degree of freedom robots हैं, they are also called Cartesian robots. So please, if you come across a terminology which is written as Cartesian robot, so then you should be able to comprehend immediately that it's a 3 degree of freedom or 3 joint robot. So this is how the Jacobian would look like. So if we have, let's see, this will always be 6 cross 1. This will always be 6 cross 1. And depending upon this, that how many joints we have here, so this will be, its rows will be equal to the number of joints. So this will be actually n cross 1, where n is the number of joints, n is the number of joints. Can be revolute or prismatic, whatever, we will see those. And depending upon these two sizes, so the size of the Jacobian will be defined like this. So let us now go on to this table which we have derived yesterday, and just to recap here that we are going, these are the velocities. This is the linear velocity. Let me just put here linear velocity, and revolute hai, so this is the angular velocity. Okay, so linear velocity of the prismatic joint is given by this, and the linear velocity of a revolute joint is given by this. Then the linear velocity of, the angular velocity of a prismatic joint will be 0. So it means that there will be no linear velocity of a revolute joint. And then an angular velocity of the revolute joint is given by this. So as we discussed yesterday, so these two terminologies are the same.
and these are easier to calculate as far as the mathematics is concerned. So the maximum difficulty level is here as far as the mathematical computation is concerned. So whenever you would be programming these equations, we will come to the equations today. So whenever you will be programming these equations, so you will be a little challenged while you are dealing with the linear velocity of the revolute joint. Okay, so let's move forward and we solve the first example. So the example which I have chosen for you is a 3 degree of freedom robot, a Cartesian robot, which has all the three joints as prismatic joints. So this is a P, P and P combination. So this is a P, P and P combination, or P, let's see, we call it as manipulator. Okay, so this is a PPP manipulator. So what we are interested to find out here is, again, the वही table आपके सामने मैंने रख दिया. So what we would be dealing here with the linear and angular velocity of the prismatic joints. So we would be actually looking at these two, this and this, which is the linear and angular velocity of the prismatic joint. So let us see. If I look at this, so this is how my equation would look like, which is chi is equal to Jacobian J and Q dot. So is Q में आप देखें तो all the D's are there because these are all the prismatic joint. So there is no rotation of the joint involved here. So let me just see and let us now see कि देखें पहले में क्या आ रहा है. ये देखें ये जो मैंने निकाला. So R00. So मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की. So here I had I is equal to 1. So ये मेरे पास यहाँ पे I is equal to 1 था. So this was R00 into 001. ठीक है. इसी तरह this is I is equal to 2 and this is I is equal to 3. So ये जो रोटेशन है, और ये रोटेशंस मेरे पास कैसे आएंगी? ये रोटेशंस मेरे पास आएंगी थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, थ्रू द transformation matrix. So I have not calculated the transformation matrix of this manipulator. So this is you have to do at your own. और कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाते हैं वो आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ DH tables. ठीक है. So what you need to do is to make a DH table, find out the transformation matrices and then come on to the velocities. So that you have to do at your own. So मैं आपको थोड़े जो इसकी कैलकुलेशंस हैं which I have done वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट वो आपको एक फाइनल रिजल्ट के तौर पर नजर आ रही होगी. तो उससे पीछे आपने अपनी कैलकुलेशन पुट करनी होगी. सो DH टेबल बनाने के लिए दीज आर द असाइनमेंट्स ऑफ द फ्रेम्स. ये आपके सामने आपको नजर आ रही है. सो वी हैव फ्रेम 0 अटैच्ड हियर. सो यू कैन नाउ make a DH table. So this is the frame 0 here, then this is the frame 1 which is, and this is the frame 2 and end effector के ऊपर आपका frame 3 लगा हुआ. And this is the movement. This is the movement D1, D2 and D3. These are the movements. ठीक हो गया. So ये आपको मैंने एक फ्रेम असाइनमेंट दे दी है. एंड अब ये वो मेरे पास एक इक्वेशन, एक मैट्रिक्स बन गया था जिससे कि मैंने इक्वेशंस बनानी है, और इन तमाम के अंदर जो चीज़ें अब वैल्यूज प्लग इन होनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. सो R00 ये रोटेशनल पार्ट है किसका? दिस इज द रोटेशनल पार्ट ऑफ 0 to 1. ये अब आपने वो जो T0 to 1 होगा ये उसका रोटेशनल पार्ट होगा. ये अब आपने सॉरी ये 0 है. सो दिस इज आइडेंटिटी. Sorry, this is not 0 to 1. This is 0 which is the rotation of 0 frame with respect to itself.
so there is no rotation with respect to itself, so this will be identity. इसी तरह ये जो R01 है, so this will come out from T01, ठीक है, जो T1 to 0 आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये उसका रोटेशनल पार्ट है. सो मैं आपको सिर्फ अभी रोटेशनल पार्ट जो मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं वो मैं आपको सिर्फ वो शो कर रहा हूँ, बट इसके जो आप DH टेबल है उससे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस बनाएंगे, सो यू शुड कम अक्रॉस विद दिस. ओके, देन R0 to R2 to 0, so R2 to 0 will be calculated by multiplying R1 to 0 and R2 to 1, again using the transformation matrices. So यहाँ से in fact आपने, let me just put it here, so use the transformation matrices for these, use the transformation matrices, ठीक है. So this you have to do at your own and then you will be able to find out. जैसे मैंने R1 to 0 निकाल लिया, R2 to 1 निकाल लिया, then I multiplied them together and I am able to find out R2 to 0. So you can see R2 to 0 here. So up now I have all the R's with me. I have R0 to 0, I have R1 to 0 and I have R2 to 0 here. So I'm going to plug these in, and when I'm going to multiply them with the vector which is 0 0 1, this vector, I'm going to multiply this all of them with this vector. So in fact I'm going to taking out the last column of all these, the last column. और ये आपको याद होगा कि हमने ये क्यों कहा था कि ये 0 0 1 हमने क्यों लिया था. ये हमने last time we discussed this, that we consider and we assume that all the movement of, let's see, if it's a revolute joint, so the rotation takes place around z axis, and similarly if it's a prismatic joint, so again we say that the prismatic joint is also moving in the z direction. तो यहाँ भी आप देखें कि हमने जो assignments की हैं 0 frame, 1 frame और 2 frame की, let's see, this is our 0 frame 0, this is frame 1, this is frame 2 and frame 3. frame 3 तो चूंकि एंड इफेक्टर है इसलिए ये उस तरह हमें अफेक्ट नहीं करेगा, बट ये ऑल आप इसके अंदर देखें तो तमाम जो मूवमेंट्स हैं दे आर इन दी z डायरेक्शन. So when I am going to put these values into the equation, so this is what we are going to get. So ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये देखिए, this is the 0 0 1 part, ये आपका पहला आ गया, then 1 0 0 and then 0 minus 1 and 0. And since it's a joint, prismatic joint, तो इसके अंदर कोई भी यहाँ पे रोटेशन जो है वो नहीं आ रही है, सारे जीरो आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं. और ये हमने जो टेबल है उसमें भी हमने ये दिखाया हुआ था कि this will all be as 0. So ये भी इस तरह एक्चुअली ये इस डायरेक्शंस में ये आ रहा है, ठीक है. So अब now we have this matrix with us. So now what we can see or we can have here is the equations which can be made by this. So let us see पहली equation अगर मैं देखूं तो how did we come to this equation. So this multiplied by this, ठीक है. So ये क्या है, x dot would be equal to d1 0, 1 का d2, और ये तो ये देखिए मेरे पास x dot is equal to d2. So जो लीनियर वेलोसिटी है मेरी x की डायरेक्शन में, that will only depend on the movement in d2 डायरेक्शन. d2 की जो चेंज है, तो ये देखें ये कैसे आपको नजर आएगा. Let me just take another color here. Which one should I pick now? I think I should pick black here. Okay. So देखिए ये मेरी x की डायरेक्शन है. अब ये एक्चुअली ये बेस फ्रेम है ना. So जो भी मेरी x की डायरेक्शन में मूवमेंट है मेरे रोबोट की, ये जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि मेरी जो बेस फ्रेम का x है उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है that is
given by this d2, ये देखिए ये। सो d2 की डायरेक्शन में जो मूवमेंट है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव मी द कंप्लीट मोशन ऑफ माय रोबोट इन x डायरेक्शन, जो कि मेरी x बेस फ्रेम की या जीरो फ्रेम की डायरेक्शन। तो ये बात आपको समझ आ रही है, इसमें कोई शक तो नहीं नजर आ रहा? ओके तो अब ये देखिए, और ये जो अब मैं मोशन की बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली एंड इफेक्टर की मोशन है, ये फ्रेम 3 की मोशन है जो मैं कह रहा हूँ। सो फ्रेम 3 विल गो इन x नॉट और इन x डायरेक्शन ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ d2, ठीक है। देन नाउ लेट अस सी दिस सेकंड इक्वेशन जो कि हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रही है। सो y डायरेक्शन y इज अपवर्ड्स, तो अगर मैं यहाँ पे y की डायरेक्शन बनाऊं तो मुझे ये इक्वेशन, तो मुझे ये एक्चुअली नजर आता है कि इस तरीके से ये मेरा इसको मूव करना है। मैं जरा इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द y डायरेक्शन जिसमें इसको मोशन करना है, तो d3 इसके अगेंस्ट है, सो दैट इज वाई हमारे पास ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में ये आ रहा है। और इसी तरह जब मुझे z में जाना है तो z में आप देखें z की डायरेक्शन में मेरी जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये z की डायरेक्शन में मेरी मूवमेंट है, और ये जो z की मूवमेंट है दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय d1। सो जो d1 की डायरेक्शन है मेरी मूवमेंट की अगर आप देखें, सो दिस इज गोइंग टू एक्चुअली गिव मी द डायरेक्शन और द मोशन ऑफ माय एंड इफेक्टर इनटू z डायरेक्शन। तो ये तीनों इक्वेशन जो आपको यहाँ नजर आ रही हैं, सो दीज इक्वेशंस टेल यू कि यार ये जो, अगर मैं इसको अब इंट्यूटिवली देखूं, एक तो ये ना मैंने मैथमेटिकली ये प्रूव कर लिया, अब अगर मैं इसको इंट्यूटिवली देखूं तो मुझे बड़ा क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है ये चीज कि x की डायरेक्शन में सिर्फ d2 ही मैटर करता है। अब देखें d1 और d3 उसमें मुझे मैटर नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो यहाँ से मैंने मैथमेटिकली निकाली है ये इंट्यूटिवली भी मुझे ठीक नजर आ रही है। इसी तरह y की वेलोसिटी या y डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी गिवन बाय d3, चेंज इन d3, एंड z की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट विल बी गिवन बाय द चेंज इन d1, ठीक है। सो ये अब जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 जिसके अंदर तीनों प्रिज्मेटिक जॉइंट्स थे, ये मैंने आपको यहाँ पे इन इक्वेशंस के मुताबिक करके आपको दिखा दिया। इसके पीछे जो थोड़ा मैथ्स है वो आप ट्रांसफॉर्मेशंस निकालना, फिर उसमें से इन चीज़ों को निकालना, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करना, वो दैट यू शुड डू एट योर ओन नेट, ठीक है जी। सिमिलरली अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल थी। अगली एग्जांपल में थोड़ा सा हम इसको इस तरह से ले आए हैं कि हमने प्रिज्मेटिक जॉइंट्स की जगह दो रेवोल्यूट जॉइंट निकाल लिए, ठीक है। अब रेवोल्यूट जॉइंट अगेन इसका मतलब है कि नाउ वी वुड बी लुकिंग एट दीज टू, एक हम लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रेवोल्यूट जॉइंट और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेवोल्यूट जॉइंट। सो वी वुड बी लुकिंग एट दीज टू, ये जो टेबल है इसके अंदर इन दो वैल्यूज को देख रहे होंगे। सो अगेन जो मेरा ये काय और जैकोबियन और ये आपने देख लिया। नाउ लेट्स सी, अब चूंकि मेरे पास ये जो क्यू डॉट है इसके अंदर मेरे पास अब दो थीटाज हैं, सो सिंस वी हैव टू हियर, सो आप देखेंगे यहाँ जो मेरी डायमेंशन है वो 6 क्रॉस 2 की होगी। ये हमने कहा था कि दिस विल ऑलवेज बी 6 क्रॉस 1। Jacobian will keep changing according to the dimension of Q, and Q की dimension will depend upon n cross 1, where n are the number of joints. तो ये अगेन आपके सामने बन गया। एंड नाउ अब मैं इसको अगर देखूं, सो ये देखिए दिस इज I is equal to 1, this is I is equal to 1 and this is I is equal to 2, ठीक है। तो वही आप देखें मैंने इक्वेशंस दोनों वहां से उठाई और i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 1 जो है i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 2 करके मैंने ये दो कॉलम्स जो है वो जनरेट कर लिए। बट आई विल गिव यू द एंड ऑफ दिस, और उसमें अगेन यही जो आपकी जो आर्स हैं, जो आपकी रोटेशंस हैं, दीज आर गोइंग टू कम टू यू थ्रू योर डीएच टेबल।
और इसके अंदर अब मैंने ये सारा आपको एक फुली कैलकुलेटेड, इसमें मैंने कुछ थोड़े से आर्स आपको नहीं दिखाए कि आर मैट्रिसेस क्या होंगे, जैसे मैंने आपको पिछले में आर मैट्रिक्स दिखा दिए थे, तो इसमें थोड़ा सा मैंने और आपको चैलेंज किया है कि आप वो जो आर मैट्रिसेस हैं वो अगेन यू नीड टू कैलकुलेट दी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू व्हाट ये जो मैंने फ्रेम्स किए हुए हैं. सो दिस इज फ्रेम नंबर 0, this is frame number 0 here, this is frame number 1 here, this is frame number 3 which is the this is frame number 2 which is the end effector. ठीक है, तो अब आपने अगेन इसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस निकालनी है, उनकी मदद से आपने इस यहां तक पहुंचना है. मैंने आपको ये यहाँ तक यू नीड टू फाइंड आउट दिस, और अगर इसको मैं देखूंगा तो इसकी मदद से जो मेरे पास इक्वेशंस हैं वो ये बन जाएंगी. सो दीज आर द इक्वेशन, दीज आर द 6 इक्वेशंस. सो आप देखें कि ये जो रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं इनके अंदर जरा इक्वेशंस जो हैं वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं. ठीक है, अच्छा अब इसकी भी अगेन आपने इंट्यूटिवनेस चेक करनी है. सो लेट्स सी, अगर मैं देखूं कि ओमेगा z is the rotation about z axis. So z dot यानी कि z0 के अगेंस्ट एक रोटेशन is only given by theta 2 by theta 1. see ना, change in theta 1. ठीक है, ये नजर आ रहा है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशन अबाउट z axis of this robot, of this end effector. So rotation of the end effector about z-axis will be given by theta 1 only. theta 2 कुछ भी आप लगा दें, जो इसकी चेंज है वो इसके मुताबिक आएगी. ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये देखूं y एंड x में, तो ये थीटा 1 इसके अंदर कोई एक कांस्टेंट होगा, यानी कि थीटा 1 किसी एक जगह पे रुका हुआ होगा और थीटा 2 इसको जो है वो डिपेक्ट करेगा. ठीक है, सो ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपकी चेंजेस हैं, ये जो आपकी वेलोसिटीज हैं, जो कि ओमेगा यानी कि x, y और z के अबाउट रोटेशन, सो दीज आर गवर्न्ड बाय ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा. जैसे इसमें ये थीटा 1 की मदद से हो रही है और इन दोनों में ये थीटा 2 की मदद से हो रही है. सही है, अब इसको इंट्यूटिवली आपने देखना है. इंट्यूटिवली हमने देखा कि x के अराउंड जो रोटेशन थी, सॉरी z के अराउंड जो रोटेशन थी वो थीटा 1 थी, ये हमने देख लिया था. लेट्स सी y के अराउंड क्या है, ये y है. सो y के अराउंड जो रोटेशन है वो कैसे है, y के अराउंड रोटेशन इज बिकॉज ऑफ थीटा 2. कैसे, ये देखें, ये थीटा 2 यहाँ से मूव करेगा तो ये y के अराउंड आपको एक रोटेशन दिखाएगा, जिसमें कि थीटा 1 आपका कोई एक क्या होगा, कांस्टेंट. ठीक है, इसी तरह x के अराउंड भी आप देखें तो थीटा 2 विल डिपेक्ट कि x के अराउंड आपकी जो मूवमेंट है वो क्या है. सो एक्चुअली ये जो x के अराउंड मूवमेंट है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये एक आपको पिच दिखाता है. ओमेगा x जो आपको जी ये थोड़ा समझ नहीं आया कि मूवमेंट आप किस तरह एक्सप्लेन जी कर रहे हैं. दोबारा पूछिए. ऐसे ही थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि आप इंट्यूटिवली किस तरह एक्सप्लेन कर रहे इंट्यूटिवली मैं कैसे कह रहा हूँ. अच्छा लेट्स सी, एक्स और वाई के ओके ठीक है, y समझ आता है, सॉरी जी को समझ आ रहा है ना आपको, जी में तो प्रॉब्लम नहीं है. नो सर. नहीं, अच्छा ओके, अब आ जाए y के ऊपर. y की डायरेक्शन क्या है, ये आपको यूं नजर आ रही है. ठीक है, y की डायरेक्शन ऐसे नजर आ रही है. अब जब मैं थीटा 2 रोटेट करूंगा, सो देयर विल बी, अब ये देखें ये y की डायरेक्शन है और ये मेरा हाथ देखिएगा. अच्छा लेट मी पुट माय हैंड टुवर्ड्स यू. तो ये y की डायरेक्शन है जो मेरे मार्कर या ये पॉइंटर आपको दिखा रहा है, और ये है. अब जब थीटा 2 रोटेट करेगा तो ये ऐसे होगा. ठीक है, तो ये y के अराउंड ये पिच कर रहा है. बात समझ आती है ये वाली? यस सर. अच्छा, इसी तरह अब x में आ जाओ. x में ऐसे जा रहा है, आपने देखा x, और अब ये मेरा हाथ है, मैं आपकी तरफ कर रहा हूं, ये मेरा थीटा 2 है.
तो ये थीटा 2 ऐसे यूं पिच करेगा एक्स के साथ, ठीक है। जबकि ये जो मेरा एक्स है, मैं थीटा 1 कुछ भी ले लूं, इस एक्स ने क्या करना है, यूं नहीं होगा तो ये यूं आपकी तरफ हो जाएगा। थीटा 1 की वैल्यू मैं कोई भी डाल दूं, तो अगर ये यहां नहीं है तो ये कहीं भी ऐसे यूं हो सकता है, पूरा 360 में कहीं भी हो सकता है, जो मैं वाई थीटा 1 की एक वैल्यू कांस्टेंट कर देता हूं। तो थीटा 1 की वैल्यू ऐसे आ जाती है, एंड देन इसके अराउंड मेरी जो पिचिंग है वो ऐसे हो जाती है। तो ये वो इंट्यूटिवली आपको ये नजर आ रहा है कि यार जो मुझे इक्वेशन दिखा रही है वही चीज मैं फिजिकली भी यहाँ पे देख रहा हूं। सही है। सो ये मैं ओके आपको, सर। हाँ मैं आपको उस सर मैथमेटिक्स को, जी। सर हमने जो आपने बात की एक्स फिक्स करके जो एक्स को फिक्स नहीं कर रहे, थीटा 1 को फिक्स थीटा कर रहे थीटा हैं। वन को फिक्स करके, वही सर। जी। तो तो थीटा थीटा 1 को वन इनमें आपको, सारों में कैसे आ रहा है, जी मतलब इक्वेशन पे किस तरह थीटा वन ये कंसिडर होता ये है, हमने सर थीटा टू। देखिए चेंज, चेंज किसकी आ रही है, चेंज सिर्फ थीटा 2 की आ रही है, डॉट के साथ देखिए थीटा 2 आ रहा है। सो इसका मतलब यस क्या सर। हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है डब्ल्यू वाई, विच इज अराउंड वाई या इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, rotation about y-axis, is depicted or is given by theta 2 dot। इस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह जो x की डायरेक्शन है ओमेगा की, जो x डायरेक्शन में है, वो दैट इज गिवन अगेन गिवन बाय थीटा 2 डॉट। चेंज जो है ना, चेंज इन थीटा 2 विल गिव मी omega x, and change in theta 2 will give me omega y, and change in theta 1 will give me omega z। और अब ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये देखिए लीनियर वेलोसिटी in the direction of z will also be given by change in theta dot, theta 2। इसको जरा इंट्यूटिवली देखें, क्या समझ आता है। देखिए z, z की डायरेक्शन ये है, सो दिस इज माय z, ये z है, और ये थीटा 2 जब रोटेट करेगा तो ये एंड फैक्टर या ये फ्रेम ऊपर नीचे जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा। सो z की जो लीनियर वेलोसिटी है z की डायरेक्शन में, दैट विल आल्सो बी गिवन बाय द चेंज इन थीटा 2। ठीक है, ये इंट्यूटिवली समझ आती है ये बात। यस सर। ओके, ये दोनों जरा डिफरेंट है, इसके अंदर दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। देखिए थीटा 1 की चेंज और थीटा 2 की चेंज, थीटा 1 की चेंज और थीटा 2 की चेंज। तो इसका मतलब है कि x और y डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटीज हैं, लीनियर वेलोसिटीज, these will be the function of both the angular velocities of the jet। यानी कि थीटा 1 की चेंज और थीटा 2 की चेंज, ये दोनों मिला के मुझे x और y की डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटीज देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं जिस पॉइंट के ऊपर आपको लाना चाह रहा था, वो ये जो इंट्यूटिवनेस थी, ये सिर्फ मैं आपको लेके आना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स तो हम कर लेते हैं, जैकोबियन निकाल लिया, इक्वेशन निकाल ली, हमें समझ आती है, हम कहते हैं कि यार ये इक्वेशन बन गई है। अब उस इक्वेशन को ऐसे सोचना है कि यार मैं इसको किस, इस इक्वेशन को किस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, और फिर मैं ये देखूं कि क्या यार वाकई जो मेरी इक्वेशन दिखा रही है, क्या वाकई वो चीज मुझे इंट्यूटिवली भी नजर आती है कि नहीं। सो दिस इज द परसेप्शन जो कि आपने बिल्ड करनी है, ठीक है, एंड दिस विल कम विद प्रैक्टिस। So if you are able to find out some more configurations of the manipulators, तो आप उनके लिए ये calculate करें, come out with the equations, and when you come out with the equation, then you will be able to see कि यार जो equation मैंने निकाली है, क्या intuitively भी वो मुझे वैसे ही नजर आ रही है। So जब आपको वो intuitively भी वैसे ही नजर आएगी, तो this will give you a confidence कि इसका मतलब है कि मैंने जो equation निकाली है वो ठीक है।
और अब जब मैं इस इक्वेशन को प्रोग्राम करूंगा फॉर माई रोबोट, इस इक्वेशन को जब मैं प्रोग्राम करूंगा तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि यार मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूं उसी तरह मेरा रोबोट उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है जी। So this is all for today. I just wanted to give you a reinforcement of what we did yesterday. But today मैंने आपको थोड़ा सा और भी कम अपनी जो कैलकुलेशन जो है वो मैंने आपको पूरी नहीं करके दी. I have left it to you just for your practice. So please, when you sit back today, please look at the yesterday's lectures. Please look at the yesterday's lecture, look at the video of the yesterday's lecture, look at the video of today's lecture, and then solve these two example with your own hands. जब एक दफा ये आपने कर ली and you come to the conclusion जो कि ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है, and as the end result अगर आपकी हाथ से की हुई कैलकुलेशन इसके बराबर आ जाती है, so that will give you confidence कि यार अब आपको जैकोबियन बनाना और with the help of joint variables, angular and linear velocities को determine करना is easier for you. It will not be a problem. ठीक है जी। जी, अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। Okay, so if you do not have any question, so let's sign off for today.